Good morning, children. Yesterday and day before yesterday, we have learnt about the kingdoms in North India. Focus was on Rashtrakutas, Gurjara Pratiharas, and Palas. Okay, so these three kingdoms they were fighting for the place that was known as Kannauj, which was known as tripartite struggle. Okay, so clear till here. So why they were fighting for Kannauj? Because of their fertility, because of prosperity of that particular place. Okay, to gain more and more wealth, these three kingdoms were always fighting for that particular place. Then we have read yesterday about the foreign invaders who has come to India to invade it and looted it. Especially the focus was on Mahmud Ghazni belonging to Ghaznavids and Ghurids from Ghurid was the Muhammad Ghori. Mahmud Ghazni, he has invaded India 17 times and looted everything from India, and he took all those wealth to his place, Ghazni, where to beautify that particular place. But Muhammad Ghori was ambitious ruler. He wanted to establish kingdom in India, so he keep on invading India, invading ruler after ruler, and finally the Prithviraj Chauhan. The famous battle that was fought with the Prithviraj Chauhan was the in 1191, and in the first battle of Taran, this is known as Battle of Taran. The first battle of Taran, Prithviraj defeated, and in the second battle, when again the Muhammad Ghori invaded in on the Prithviraj Chauhan. So in 1192, again Prithviraj Chauhan was defeated, and because of conspiracy that was done by Muhammad Ghori with the Jayachand, the Jayachand did not participate in the conflict. So later on, Jayachand was also he was also defeated by Muhammad Ghori, and Muhammad Ghori himself did not stay in India. Instead of that, he asked further conquest was done by his general, whose name was Qutbuddin Aibak. After Qutbuddin Aibak, slave dynasty came into being. Slave dynasty came into being. So now after that, now today we are going to start with the topic South India. We will talk about the kingdoms that flourished in South India. So these kingdoms were like Yadavas of Devagiri, Chalukyas of Kalyani, Kakatiyas as well as Hoysalas of Varangal. ठीक है. South India saw the rise of many powerful kingdoms like Pallavas of Kanchi, जिन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बिल्ड किए थे, एंड पांड्याज ऑफ मदुराई. ठीक है, तो ये साउथ में किंगडम आप देख सकते हो. चोलाज हैं, पांड्याज हैं, पलवाज लिखा नहीं है, लेकिन जो आपका ग्रीन पोर्शन है आपकी बुक में उसके ऊपर आप देखिए सेंटर में ऊपर को मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वहाँ पे आपका पालवाज है. ठीक है, तो इन सब में से चोलाज जो है दैट बिकम्स द मोस्ट पावरफुल अमंग देम. तो चोलाज जो है उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ देयर पावर. Okay, now before we move to the who were Cholas, let us see what is written in the fact quest. तो यूरियार मॉडर्न तिरुचिरापल्ली जिसको बोला जाता है वॉज द कैपिटल ऑफ एंशियंट चोला किंगडम. ठीक है, ओरियार या यूरियार. ठीक है, तो ये नाम है तिरुचिरापल्ली जो आजकल के हम नाम से जाना जाता है. तो 9th सेंचुरी CE में जो पालवास का चीफ था जिसका नाम विजयालय था. तो देखिए बेटा, इसने जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो किंग्स थे वो अपने अंडर सबॉर्डिनेट्स रखते थे जिनको समांतास भी बोला जाता था. ये समांतास वही होता है जो ग्रेट वॉरियर या फिर जिनके जो लैंड लॉर्ड्स होते थे. ठीक है, तो वो जब वीक हो जाता था रूलर, पर्टिकुलर रूलर वीक हो जाता था, तो यही समांतास जो थे उसको डिफीट करके खुद राजा बन जाते थे और उनको हटा देते थे. तो ऐसे ही एक चीफ्टन था पालवास का जिसका नाम था विजयालय.
उसने जो रूल किया, वो रूल करता था छोटी सी टेरिटरी जो कि थंजावर के पास में थी। विजय आल्या जो था उसने थंजावर को कंकर किया और अपनी कैपिटल बना लिया उसको, और उसने एक चोला एम्पायर, इम्पीरियल बड़ा एक जो दूसरों को डोमिनेट करने वाला है, उनको एक चोला एम्पायर बना लिया इन द मिडीवल पीरियड। तो विजय आल्या जो था उसने पालवा के किंग जो पालवा का किंग था जो कि कांची में था, कांची के पालवास जो थे उनको डिफीट किया। और किसको डिफीट किया उसने? श्रीलंका को। तो विजय आल्या के बाद कौन आए? राजा राजा चोला है, जिनका टाइम पीरियड जो था 985 से लेके 1016 तक का था, जो कि 9th और 10th सेंचुरी, आप 10th और 11th सेंचुरी दोनों में आप कह सकते हो। वॉज अ पावरफुल रूलर। राजा राजा चोला जो थे वो बहुत ही पावरफुल रूलर थे, हु डेवलप्ड पावरफुल नेवी। उन्होंने, आप ध्यान रखिएगा बेटा, राजा राजा के टाइम में जो था नेवी बहुत पावरफुल हो चुकी थी, और उसने मालदीव्स के लिए भी एक्सपीडिशन भेजा, मतलब वहाँ पे भी चढ़ाई चढ़ दी उसको कॉन्कर करने के लिए। ही ऑल्सो कैप्चर द नर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका का जो नॉर्थ पार्ट है, ऊपर का हिस्सा जो है श्रीलंका का, उसको भी उसने कैप्चर कर लिया। किसने कर लिया? राजा राजा चोला ने। और ये भी बिलीव किया जाता है कि ही डिफीटेड द चालुक्याज ऑफ डेक्कन। देखिए बेटे, चालुक्याज, आपका अगर ध्यान हो, चालुक्यास में एक दंती दुर्गा जो था सबॉर्डिनेट था, उसने चालुक्यास को हरा के खुद अपने आप ही वहाँ पे राज करना शुरू कर दिया, और उसका नाम था, कौन सा डायनेस्टी शुरू होगी? राजकुटास की। ठीक है। अब जो सिटी ऑफ थंजावुर जो थी, ये बहुत ही ज़्यादा मैग्निफिसेंट और एलेबोरेटेड गार्डन्स और पैलेसेस से भरी पड़ी थी। ठीक है। और आप इस अपनी साइड में देख लीजिए, बृहदिश्वारा टेम्पल जो है ये भी बनाया गया था राजा राजा चोला ने। ठीक है, बृहदिश्वारा टेम्पल। तो ये अच्छी एग्जाम्पल है चोला के आर्किटेक्चर के बारे में, अगर आपको जानना है। और उसके बाद राजा राजा के बाद राजा राजा चोला के बाद राजेंद्र चोला जो उसके बेटे थे वो सक्सीड किया, और राजेंद्र चोला वन जो है सबसे ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है, मिलिट्री जनरल माना जाता है इंडिया का। ठीक है, यानी कि राजा राजा क्या हो गया, उसने नेवल एक्सपेडिशन बहुत ज़्यादा अच्छे से कर दिया था बेटा। नेवल एक्सपेडिशन इतना अच्छा कर दिया था कि आपको जो है आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपना जो ट्रेड था वो जापान तक अपना बढ़ा चुके थे। तो एविडेंसेस मिलते हैं कि जापान तक जो है राजा राजा चोला का जो है उनका ट्रेड चलता था। और राजेंद्र चोला जो उसका बेटा था वो एक ग्रेट मिलिट्री जनरल हुआ और ग्रेटेस्ट रूलर हुआ इंडिया का। तो उसको गंगाई कोंडन भी बोला जाता है। गंगाई कोंडन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसने जो अपना एरिया है गंगा वैली तक बढ़ा लिया था, क्योंकि बंगाल का जो रूलर था उसको इसने रिवर गंगा को पार करके उसको भी डिफीट कर दिया था। और फिर उसने एक टेम्पल भी बनाया है जिसका नाम था गंगाई कोंडा चोलापुरम। ठीक है, इस टेम्पल को नाम दिया उसने गंगाई कोंडा चोलापुरम, उसी नाम से जो जहाँ पे इसने अपना बढ़ा लिए थे। अब आ जाते हैं बेटा हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोलास। चोला किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन उनका हुआ करता था। बिफोर वी गो टू एडमिनिस्ट्रेशन, लेट्स सी द फैक्ट क्वेस्ट। जो रॉयल एम्बलम है चोला किंग का वॉज द टाइगर। ठीक है, जो रॉयल एम्बलम है चोला किंग्स का वो टाइगर है। जैसे आप नेशनल एम्बलम देखते हो ना हमारा, उसमें 3 टाइगर्स और बैक साइड में बोला है, तो इस तरह से जो है रॉयल एम्बलम चोला किंग का टाइगर हुआ करता था। तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो किंग था वो मेन था, सेंट्रल फिगर था, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को वही हेड करता था, वही चलाता था। और हमेशा कोई भी ऑर्डर इशू करना होता था वो उसके द्वारा ही किए जाते थे। एंड ही रिकॉर्डेड द मैन वॉट एवर, जो भी ऑर्डर्स वो देता था वो मैन्यूस्क्रिप्ट में रिकॉर्ड किए जाते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स आपको पता है बेटा, हैंड रिटन रिकॉर्ड्स है ना, जो हाथ से लिखे जाते थे। बाद में यही मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है इंस्क्राइब कर दिए जाते थे टेम्पल वॉल्स में। ठीक है, उनको एज इंस्क्रिप्शन यूज़ किया जाता था। तो द किंग जो था अपने एडमिनिस्ट्रेशन के कामों में किसकी मदद लेता था, कौन उसको मदद करते थे? उसके ऑफिशियल्स मदद करते थे। जो लॉयल ऑफिशियल्स होते थे उस किंग के चोला डायनेस्टी में, उनको अराइयार और मुवंदा वेलन, इन 2 नामों का टाइटल दिए जाते थे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ चोलास। ठीक है, अराइयार और मुवंदा
मुविंदा वेलन। तो आप तो 2-4 बार और पढ़ेंगे तो आपको ये नाम याद हो जाएंगे। आगे चलते हैं हम, चोला डायनेस्टी का रेवेन्यू सिस्टम किस तरह का था। जो लैंड रेवेन्यू था वो चीफ सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था, और सर्वे अच्छे से तरह से लैंड्स का किया जाता था, और देखा जाता था कौन सी लैंड्स जो हैं उपजाऊ हैं, कौन सी नहीं। इसलिए उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका नाम रख दिया जाता था, कौन सी टैक्सेबल लैंड्स हैं और कौन सी नॉन टैक्सेबल लैंड्स हैं, क्योंकि जहाँ से कुछ उपज ही नहीं होगी वहाँ से क्या टैक्स लिया जा सकता था, है ना। तो टैक्सेस जो थे वो इम्पोज किए जाते थे ट्रेड और बाकी प्रोफेशंस में। और रेवेन्यू जो है कौन कलेक्ट करता था, लोकल अथॉरिटीज़ करती थी या फिर रॉयल सर्वेंट्स कलेक्ट करते थे। और लैंड रेवेन्यू के साथ साथ जो कोचोला किंग्स थे वो बहुत तरह के भी टैक्सेस लगाया करते थे, जैसे पॉटर्स के ऊपर, गोल्ड स्मिथ्स के ऊपर, वीवर्स के ऊपर एंड ब्रोकर्स के ऊपर। और इसके अलावा जो है साथ साथ ही अमंग्स मैनी मोर वो लेवी टैक्सेस एज वेल। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे जो टैक्स थे वो लेवी करते थे चोलाज। ट्रांसपोर्ट ऑफ राइस भी होता था, टेक्सटाइल्स का ट्रांसपोर्टेशन भी होता था, पेपर का भी होता था। तो देखिए टेक्सटाइल्स क्या हो गया, कपड़ों से रिलेटेड, पेपर क्या हो गया, मसालों से रिलेटेड। तो इनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाता था। तो टैक्स वॉज ऑल्सो लेविड ऑन ट्रेड एंड दिस बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट। एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन चुका था टैक्स जो है स्टेट की इनकम का। अब पढ़ते हैं मिलिट्री डेवलपमेंट्स। तो जो चोला जो थे बहुत ही एफिशिएंट मिलिट्री सिस्टम हुआ करता था उनका, और ये भी मेंशन किया गया है चोलाज इंस्क्रिप्शन में कि राजा राजा चोला वन जो थे उसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट आर्मी बनाई, जो बाद में उसके सन और सक्सेसर के द्वारा उसको और भी उन्होंने मजबूत कर लिया, स्ट्रेंथन कर दिया। और उसके सन और सक्सेसर कौन थे, राजेंद्र चोला वन। ठीक है, राजा राजा वन की एफिशिएंट आर्मी हुआ थी, स्ट्रेंथन किसने करी उसको, उनके बेटे राजेंद्र चोला वन ने। और इनकी आर्मी में कौन कौन हुआ करते थे, एलिफेंट्स होते थे, कैवलरी होती थी, इन्फेंट्री हुआ करती थी। ठीक है, इन्फेंट्री जो होते हैं वो फुट सोल्जर्स थे, कैवलरी आपकी कह सकते हो जैसे आपके तीर कमान वाली चीज़ें हो गई, है ना। और आपके घोड़े, हाथी, ये सब कैवलरी में आ जाएंगे। ठीक है, देन इनफैक्ट अरेबियन हॉर्सेस जो थे ऑफ सुपीरियर क्वालिटी वो भी इंपोर्ट किया जाता था। इंपोर्ट मीन्स बाहर के देशों से मंगवाए जाते थे। क्या मंगवाया जाता था, अरेबियन हॉर्सेस। चोलास जो थे वो अमंग्स द फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने नेवी में नेवल आर्मी जो है मेंटेन की हुई थी। ठीक है, चोलास ने नेवल आर्मी को भी मेंटेन किया था। दिस हेल्प दैम डिफीट द चेराज, और जिसकी वजह से इस नेवल में आर्मी की वजह से ही वो चेराज को डिफीट कर पाए थे। और उन्होंने और इनेबल क्या कर दिया था, अपना कंट्रोल जो कोरोमंडल और मालाबार कोस्ट पे बढ़ा लिया था। ठीक है, और डिफीट द चेराज एंड एनेबल दैम टू कंट्रोल द कोरोमंडल एंड मालाबार। तो और उन्होंने उनको अलाउ कर दिया कि वो कोरोमंडल कंट्रोल और मालाबार कोस्ट पे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आ जाता है आपका एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। एग्रीकल्चर दैट मीन्स खेती, इरिगेशन मीन्स पानी। तो चोला जो है हमेशा उन्होंने एग्रीकल्चर को इनकरेज किया अपने पूरी किंगडम में, और स्पेशली जो एरिया कावेरी बेसिन के पास था। ठीक है, बहुत सारी कमेटीज़ थी जैसे कि इरिगेशन कमेटी, गार्डन कमेटी, ये भी सेटअप कर दी गई। ठीक है, टू ओवरसीज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है पानी का वो प्रॉपरली कर पाएँ। बहुत सारी कैनाल्स और टैंक्स जो थे वो भी बिल्ड किए गए इरिगेशन के लिए, वास्ट एग्रीकल्चर लैंड्स के लिए। जो चोलर्स जो थे ऑल्सो इरेक्टेड एम्बार्कमेंट इन टू प्रिवेंट फ्लडिंग टू द एग्रीकल्चर लैंड्स। और उन्होंने जो नदी के आसपास जो एम्बैंकमेंट होता था, मतलब किनारा होता था, उसमें उसको एम्बैंक कर दिया, मीन्स उसके आसपास जो है पत्थर से दीवारें खड़ी कर दी या मड की दीवारें खड़ी कर दी, ताकि जो है फ्लड के टाइम पे जो है पानी जो है बाहर ना निकल सके और उस एरिया को ख़राब ना करे। नेक्स्ट है और क्या कंट्रीब्यूशन है चोलास का हमारे लिए। चोलास जो गवर्नमेंट है ये सबसे पहली जो है अपनी इसलिए सबसे आगे आई है क्योंकि उनकी डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज़ थी उनके अंदर। अपनी डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज़ की वजह से जो चोला गवर्नमेंट है वो हमेशा अच्छी मानी गई है, बाहर निकल के आई थी। सो देयर वर द मोस्ट यूनिक एंड इनोवेटिव, और ये बहुत ही यूनिक हुआ करते थे, इनोवेटिव होते थे, और
पहले रूलर्स होते थे जिन्होंने इंटायर साउथ इंडिया को अपने कंट्रोल में कर लिया था। और उन्होंने क्या एक्टिव इंटरेस्ट लिया था इसमें, दे टुक द एक्टिव इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल सेंटर्स। टेम्पल सेंटर की डेवलपमेंट के लिए भी उन्होंने एक्टिव इंटरेस्ट दिखाया और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए, हॉस्पिटल्स टेम्पल्स के आसपास इस्टेब्लिश किए। तो राजा चोला जो थे उसने इनकरेज किया शैलेंद्र रूलर ऑफ श्री विजया टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट विहारा एट नागापट्टिनम। तो राजा चोला ने जो शैलेंद्र रूलर थे जो कि श्री विजयालय के रूलर थे, उनको इनकरेज किया ताकि वो अपने बुद्धिस्ट विहारा अपने नागापट्टिनम में बना सके। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा केस स्टडी। ओके चिल्ड्रन, नाउ विल मूव टू द केस स्टडी। द स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट ऑफ द चोलास, द लॉस्ट वैक्स टेक्निक, मतलब वैक्स का लॉस्ट होना, उस टेक्निक से जो क्राफ्ट बनाते थे चोलास उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जो चोला पीरियड था वो जो ब्रोंज़ के स्कल्पचर्स थे उसके लिए बेटा बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जाना जाता था। और ये जो स्कल्पचर्स थे वो कौन कौन से बनाया करते थे, वो आइडल्स ऑफ शिवा एंड पार्वती, पार्वती देवी और शिव जी के जो मूर्तियाँ बनाया करते थे। एंड दीज आर ग्रेसफुल मास्टर पीसेज, स्पेशली द आइडल ऑफ लॉर्ड नटराजा। लॉर्ड नटराजा पता है ना बेटा, शिव जी का जो डांसिंग पोज होता है दैट इज़ नोन एज आइडल ऑफ लॉर्ड नटराजा। तो ये बहुत ही ग्रेसफुल मास्टर पीस था उनका, जो ये शो करता था कॉस्मिक डांस के बारे में। और ये जो इमूवेबल आइडल्स थे, मतलब वो मूवमेंट तो उनमें नहीं थी ना आइडल्स, तो उनको एक इनर सेंक्टम में रखा जाता है। इनर एक पवित्र सेंक्टम इज़ पवित्र जगह, ठीक है, तो वहाँ पे रखा जाता था। और 10th सेंचुरी के आसपास ये महसूस किया गया कि ये डीटीज़ जो हैं पब्लिक स्पेसेस में रखी होनी चाहिए थे, इसलिए फिर उनको अच्छी तरह से ड्रेसअप किया जाता था, ग्रैंड ज्वेलरी के साथ डेकोरेट किया जाता था। और चोलास जो है क्या करते थे, दे यूज़ द लॉस्ट वैक्स टेक्निक टू क्रिएट दीज ब्रॉन्ज इमेजेस। तो ये लॉस्ट वैक्स की टेक्निक का यूज़ करते थे ब्रॉन्ज इमेजेस को बनाने में। और संस्कृत का जो शिल्पा टेक्स्ट है उसको मधु उच्चता विधाना बोलते थे इसको, जो ये इमेज बनाना जो है वैक्स लॉस्ट वैक्स टेक्निक से। तो संस्कृत में क्या बोला जाता था, संस्कृत शिल्पा टेक्स्ट क्या बताता है इसके बारे में कि इसको वो मधु उच्चता विधाना बोलते थे। और इस टेक्निक में जो बी वैक्स होती थी उसको थोड़ा सा ऑयल उसमें मिला के उसको नीड कर लिया जाता था, मीन्स गूंद लिया जाता था। और फिर जो फिगर थी और इज़ देन स्कल्प्टेड, और उसको फिगर में एक स्कल्पचर बना लिया जाता था उस नीडिंग मटेरियल से, वैक्स के मटेरियल से। और उसकी सारी जो छोटी से बारीक माइन्यूट डिटेल्स मतलब ध्यान में रखते हुए कि नाक कैसा होना चाहिए, आंख कैसी होनी चाहिए, हाथ किधर को होना चाहिए, है ना, तो माइन्यूट डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए एक फिगर बना लिया जाता था, है ना, स्कल्पचर बना लिया जाता था। फिर उसको स्कल्पचर को क्ले से कोट कर दिया जाता था, जितनी थिकनेस उसकी ज़रूरत होती थी उतनी ही, ठीक है। फिर ये जो कोटेड क्ले होती थी, मतलब जो वैक्स जो कोटेड होती थी विद द क्ले, उस क्ले को फायर में क्या करा जाता था, उसमें पकाया जाता था ओवन में। ओवन कैसे बनाया जाता था, काउ डंग केक्स, मतलब जो उपले होते हैं, है ना, गोबर के उपले, उससे आग जला के उसमें उसको ड्राई कर लिया जाता था। जो उसके अंदर जो आपकी मिट्टी के बना हुआ है, जो बाहर कोटिंग करते हैं मिट्टी के, उसके अंदर तो वैक्स थी ना, तो गर्म होने से जो वैक्स कोटेड वैक्स होती है उसके अंदर वो पिघल के गिर जाती थी और बीच में से वो खाली हो जाता था, ठीक है। और फिर उसके अंदर जो है एलॉय भर दिया जाता था, ठीक है। और जब वो एलॉय जो है उस सारे क्ले एम्प्टी खाली हुआ जो मोल्ड बन जाता है, एक सांचा बन जाता था, उसके अंदर उसको डाल दिया जाता था। और दिस एलॉय, ये जो एलॉय था उसको क्या बोलते थे, पंच लोहान, ठीक है, 5 लोहा, ठीक है। इस एलॉय को पंच लोहान बोला जाता था। और इस मेटल को उस मोल्ड के अंदर डाल दिया जाता था। जितने भी क्रीवेसेस होते हैं, मतलब जो भी छोटी छोटी दरारें होती थी या कोई जगहें थी, सारों में मतलब कोई भी कोना छोड़ा नहीं जाता था, उसमें भर दिया जाता था। जब वो उसके अंदर सेटल हो जाता था, हार्डन हो जाता था और ठंडा हो जाता है, तो फिर उस मोल्ड को तोड़ दिया, जो मिट्टी का मोल्ड जो पकाया हुआ होता है उसको तोड़ दिया जाता था और उसके अंदर से ब्रोंज इमेज जो है निकल के बाहर आ जाती थी। और उसको क्लीन करते थे, पॉलिश करते थे, उसके अंदर कोई इम्परफेक्शंस थी उसको रिमूव कर देते थे और उसको स्टैचू को स्मूथ बना देते थे, ठीक है। तो ये होगी आपकी लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो कि चोलास के टाइम पे
मिली थी। लेट्स कम टू द वर्ल्ड कनेक्ट। अब दूसरी जगहों पे देश में क्या हो रहा था जब इंडिया में ये सब चीज़ें हो रही थी। सुई एम्पायर था बेटा चाइना में, वो कोलैप्स हो गया था, मतलब एकदम से टूट गया था, मतलब डाउनफॉल हो गया था। जो ये और टैंग डायनेस्टी थी वो पावर में आ गई थी और उसकी कैपिटल थी ज़ियान। टैंग डायनेस्टी की कैपिटल ज़ियान थी और जो टैंग डायनेस्टी थी उनकी पावर जो थी 7 से 10 सेंचुरी तक रही। ठीक है, सो ये जो सेंचुरी थी 7 to 10 सेंचुरी, इसको गोल्डन एज बोला जाता था ऑफ कॉस्मोपॉलिटन कल्चर इन चाइना। ठीक है, जो चाइनीज़ पोइट्री थी बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुई इस पीरियड में। ली बाय और दू फू ये दो फेमस पोइट्स थे जो इस एज को बिलोंग करते थे, यानी कि 7 to 10 सेंचुरी में। और पेंटर्स जैसे कि हान गन और जहांग जुआन एंड जोह फैंग, ये भी इस टैंग डायनेस्टी के अंडर ही फ्लोरिश हुए। और बुद्धिज़्म भी इसी पीरियड में फ्लोरिश हुआ और बहुत सारी नोटेबल इनोवेशंस हुई इस टाइम पीरियड में ही। जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी, जो वुड को अंदर उसके अंदर इनग्रेव करके उसके अंदर कुछ कुछ बना के, है ना, उसके साथ प्रिंटिंग किया करते थे। और इस तरह की एक इन्वेंशन थी या एक टेक्निक थी जिसमें ब्लॉक्स जो थे, जो वुड, आप पिक्चर में भी देख सकते हो बेटा, ब्लॉक्स, वुड के ब्लॉक्स होते थे और उनके अंदर कुछ बनाया डेकोरेशन का या कुछ भी प्रिंट बना दिया जाता था। फिर उसको प्रिंटिंग टेक्स्ट के लिए यूज़ किया जाता था, इमेजेस बनाए जाते थे, उससे पैटर्न्स बनाए जाते थे। किसके ऊपर? टेक्सटाइल्स के ऊपर, यानी कि कपड़ों के ऊपर या फिर पेपर के ऊपर। जो टैंग डायनेस्टी थी वो उनके ट्रेड और कल्चरल टाइज थे उनके नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि कोरिया, जापान और वियतनाम। So with this we end with the chapter. Hope you have understood the chapter. You can read it from the book.